Progress. Hi, so my name is Bhavya Parikh and I am a second year student in Nalsar, Hyderabad, currently doing BA LLB honors. Now, I would be sharing the lesson plan with you guys for the next 2 months for us to study general knowledge, that is GK. In the next 2 months, we'll be at least giving 50 hours for GK and we'll try and cover most of the content that would be coming in your examinations, which test you on GK or current affairs, and we'll try our level best to complete them. So this would be your lesson plan. Let's go with it. So our first hour would consist of this. It would be an introduction to monthly GK. That is, in the first hour, I'll be giving you an overview of the course. We will discuss why staying updated with GK is important and how is GK relevant to you and how can you make it easier for yourself to learn. There are certain tactics that you can use. There are certain tricks and tips that I use during my preparation when I gave class. So you should, I'll be sharing them with you and you should try them if they work for you. And last but not the least, we'll be going over once the structure of the course. In the upcoming hours from R2 to R49, we'll be devoting 2 hours firstly for monthly GK of each month. So if it's January, we'll be giving at least like 2 hours and we'll try and cover the month of January in these 2 hours. We'll do January to December in such fashion that we'll be giving 2 hours each day or 2 hours segregatedly to 1 month and we'll cover this particular month in these 2 hours. We'll cover those significant events happening in that particular month, the significant news items that happen, any specific developments that took place. Apart from these, after covering these 12 months, what we would do is we would move towards these topics and we would go through national and international news. So all the important national and international news would be covered in a separate session. Then we would cover sports events. Then we would go through awards and recognitions, new government policies, all the schemes such as there is Ujjwala Bharat or other schemes. We'll cover them in these 2 hours. Then we would move on to scientific discoveries, जैसे Nobel Prize अभी मिले हैं. So for what are these Nobel Prize given? All those discoveries will be discussed in detail. Then we would go over to cultural and historical events. So these would be the sessions that we will be doing. This would be done in R2 to R49. After that, we'll devote our 50th hour for one final review and evaluation. Now, this is not going to be a test, but there would be a quiz, and there would be some tips for you to how to stay updated in future and how to go by GK so that you do not have a very bulky course at the end, but you can stay updated throughout the year. We'd recap the entire year's GK topics first, and then we would go over the quiz, which would test your knowledge of how much you have prepared through in this 50-hour course. So this would be my plan. I'll discuss something about the monthly segment that we would do. We will cover all the news headlines. We would cover important infographics, all the famous personalities. We would also do important days that would be coming in that month. We discuss the impact of these events. This is basically important for you to know why this news is there. If you know the why of a news, it becomes a story for you and it becomes easier for you to understand. Then we would try and incorporate certain interactive elements such as polls हो गए या question answer sessions हो गए. We would try कि हर session में हम एक question answer session add कर सकें, जिससे there could be a quick recap for all of you. So this is one thing. So let's start with the topic for the day, and the topic for the day that we are taking today is Chandrayaan 3. So now let's start with that. Let's start with our topic for the day, which is Chandrayaan 3. Now, I really hope all of you know that India has successfully launched and landed Chandrayaan 3. So what we will do is we will try and break down the details of this mission, and this will be a complete overview of this topic so that I can give you an idea of how we would be dealing with topics in future.
So let's start with Chandrayaan 3. First and foremost, one of the most important thing is do not try to rote learn GK. If you're trying to rote learn GK, you are already on the, you know, incorrect track. What you have to do is you have to try and understand everything. What is important is that you understand. Now let's break Chandrayaan. चंद्र का मतलब होता है मून और यान का मतलब होता है व्हीकल. So a vehicle that is going to moon is Chandrayaan. 3 signifies that this is the third vehicle that went to moon. So let's start with today's topic. Who launched Chandrayaan 3? So ISRO is the organization that launched Chandrayaan 3. What is ISRO? It is India's space agency, and it comes under the Department of Space. Who is the Union Minister of Department of Space? It is our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. So usually ये देखा जाता है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, यूजुअली, आई एम नॉट सेइंग कि मैंडेटरीली ऐसा कुछ है, पर यूजुअली हमने देखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही हेड कर रहे होते हैं. So ISRO, Indian Space Research Organization, is India's space agency. जैसे USA की है NASA. You have heard about European Space Agency, that is ESA, या Canadian Space Agency CSA. So all accordingly, similar to all of these, we have our Indian Space Research Organization. कहाँ headquartered है ये? So it is headquartered in Bangalore, Karnataka. इसका विजन क्या है? तो इसका विजन है कि इसे स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम करना है फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन. Chandrayaan 3 जो गया है वो भी नेशनल डेवलपमेंट और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए ही गया है. देन वी हैव अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड. अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज नॉट रिलेटेड टू Chandrayaan 3, पर अगर हम इसरो पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज दी बेसिकली कॉमर्शियल एंड मार्केटिंग ब्रांच ऑफ इसरो, जो कि प्राइवेट सैटेलाइट्स और इन सब में डील करता है. So this is the commercial branch of ISRO. You can simply remember the name. अभी current chairman कौन है? तो श्री S. Somnath. S. Somnath is the one जिनके अंडर Chandrayaan 3 ने successfully land किया है, and he is the present chairman. So this was all about ISRO. I hope it is clear. Abhi we will not go into details such as the founding fathers and when was it established, but we will just briefly go over it. Chandrayaan 3 से पहले, as the name suggests, it is the third one. तो Chandrayaan 3 से पहले भी 2 मिशंस जा चुके हैं. One was Chandrayaan 1 and then Chandrayaan 2. तो Chandrayaan 1 जो था वो इंडिया का पहला लूनर मिशन था and it was launched in the year 2008. इसके 2 पार्ट्स थे, एक ऑर्बिटर था और एक इम्पैक्टर था. और ये कौन से व्हीकल से लॉन्च किया था? तो PSLV C11. कुछ एग्जाम्स में ना आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेंगे, वो पैसेज या कोई भी क्वेश्चन ऐसे Chandrayaan 3 से रिलेटेड दे देंगे और आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि Chandrayaan 1 was launched in 2008 using which transport vehicle. तो नाम याद रखना, it was launched through PSLV C11. इसका ऑब्जेक्टिव था कि ये मून की स्टडी करे और इसके जो 90% प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स थे वो इसने कंप्लीट करे थे. 90% एक स्पेस मिशन जो कि अर्थ के बाहर मून पर एक्ट कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ा नंबर होता है. तो इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल मिशन. और इसका वेरी सक्सेसफुल नेचर क्यों कहते हैं, इसका एक रीजन है कि पहली बार जो है वाटर वाज फाउंड ऑन मून. और ये किसने ढूंढा था? तो इंडिया के Chandrayaan 1 ने ढूंढा था. कब ढूंढा था, कब लॉन्च हुआ था? 2008 में. So this is a very important mission. इसके लिए यही पॉइंटर्स काफी है. Just go through these points and this would be enough for you to understand. ये याद रखना कि किससे लॉन्च किया था? तो PSLV C11 से. पानी इसने ढूंढा था, इंडिया का पहला लूनर मिशन था और 2008 में लॉन्च किया था. Moving on, then we have Chandrayaan 2. I hope आप सबने Chandrayaan 2 के बारे में सुना हो. It was launched in 2019 और ये फेल हो गया था. Not entirely फेल हुआ था, पर ये कह सकते हैं कि जो रोवर था वो क्रैश कर गया था और विक्रम लैंडर ही बचा था सिर्फ. तो ये हमारा सॉफ्ट लैंडिंग पर पहला अटेम्प्ट था इंडिया का और हम सॉफ्ट लैंड नहीं करवा पाए थे अपने रोवर और लैंडर को. सो देयर वाज वन ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर. विक्रम लैंडर था और इस बार भी वील कम टू दैट. अभी ये करते हैं. तो इसका काम था कलेक्टिंग साइंटिफिक डेटा ऑन लूनर टोपोग्राफी, मिनरल वाटर, आइस एक्सेट्रा. ये इन सारे मिशन के साथ गया तो था, पर क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो ये सारे मिशंस भी काम में नहीं आ पाए.
ट्राई किया था लॉन्च करने का 2019 में, और क्रैश भी 2019 में ही हुआ था। नहीं याद आ रहा हो तो याद रखना, अक्षय कुमार की मूवी आई थी एक, मिशन मंगल। मिशन मंगल से जस्ट पहले चंद्रयान 2 का जो है क्रैश लैंडिंग हुई थी, तो उनकी मूवी को काफी अच्छा बूस्ट मिल गया था और बहुत लोग देखने गए थे वो। मिशन मंगल वाज आल्सो अबाउट कि मिशन मंगल को अगर किसी ने ध्यान से देखा हो तो उसमें वो कहते भी हैं कि अभी चंद्रयान 2 जो है वो प्रोजेक्ट पुश बैक कर दिया गया है और उसके इक्विपमेंट्स यूज कर लेते हैं मिशन मंगल के लिए, मिशन ऑन मार्स के लिए। तो फिर वहां पर भी दे आर टॉकिंग अबाउट चंद्रयान 2। कुछ नहीं है, थोड़ा सा रेफरेंस है फॉर यू टू लाइक कनेक्ट थिंग्स, बट इम्पोर्टेंट इज कि सेकंड लूनर मिशन आया था 2019 में, आया था, रोवर क्रैश कर गया था और हमारा पहला सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट था। चंद्रयान 2 से सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और हमारे टॉपिक पे चलते हैं। चंद्रयान 3 इंडिया का थर्ड व्हीकल टू मून। तो इंडिया का ये थर्ड लूनर मिशन है और ये सक्सेसफुल हुआ है अपनी सॉफ्ट लैंडिंग में। सॉफ्ट लैंडिंग होता क्या है? बेसिकली एक कंट्रोल्ड लैंडिंग होती है जिसमें स्पीड जो है वो आपके लैंडर की कंट्रोल करी जा रही होती है, और इस लैंडिंग में ना सबसे कम इम्पैक्ट होता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पे और सबसे सेफ लैंडिंग होती है। तो इस सेफ लैंडिंग को कब कराया है और कहाँ कराया है? मून के साउथ पोल पर कराया है 23 अगस्त को। 23 अगस्त, जो कि अब हमारा बन चुका है नेशनल स्पेस डे। तो इस नेशनल स्पेस डे इज द डे जब इंडिया ने मून पर लैंड किया है। और कैसा लैंड किया है? सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड किया है। ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया के पहले देश बन गए हैं टू लैंड ऑन मून साउथ पोल। लूना 25 रशिया का जो व्हीकल था वो हमसे 2 डेज पहले ही लैंड करने वाला था, जो कि क्रैश कर गया था, और हम बन गए फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन मून साउथ पोल। अब ऐसा क्यों हुआ है? तो क्योंकि हम चंद्रयान 2 के फेलियर से सीख चुके थे कि भाई क्या क्या हम गलतियां कर रहे हैं और क्या क्या हमें गलतियां नहीं करनी है। वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा लर्निंग पॉइंट था। और रशिया का जो बजट था ना वो भी हमसे बहुत ज्यादा था यार। तो हमारे लिए एक बहुत ही मतलब प्राउड मोमेंट टाइप्स है कि हम इतने कम बजट में, जो कि 615 करोड़ का बजट, यार बॉलीवुड मूवीज का बजट होता है, और उसमें इसरो ने सक्सेसफुल मिशन बनाया और उसको सॉफ्ट लैंड भी करवा दिया, मतलब बिल्कुल कम इम्पैक्ट के साथ, और सक्सेसफुली लैंड करा दिया। कितना टाइम लगा? तो 14 अर्थ डेज या फिर 1 लूनर डे लगा। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि 1 लूनर डे इज इक्वल टू 14 अर्थ डेज, और इतना टाइम लगा चंद्रयान 3 को मून पहुंचकर लैंड करने में। इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो सेफली और सॉफ्ट लैंड करना लूनर सरफेस पे, रोवर एक्सप्लोरेशन ऑन द मून एंड कंडक्टिंग इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। इन सिटू मतलब होता है उसके नेचुरल हैबिटेट में। तो अब कोशिश करी जाएगी कि जो मून का नेचुरल हैबिटेट है वहां पर जो है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाए और पता करें कि मून के हैबिटेट का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट रहता है। हमारे ऊपर से मतलब कुछ प्लांट्स ग्रो करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे जाएंगे। कुछ की फीचर्स देख लेते हैं चंद्रयान 3 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, इनका नाम ना अच्छे से याद कर लो। जैसे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम याद करते हो ना, इनका नाम भी उतने ही अच्छे से याद होना चाहिए। ये चंद्रयान 3 के एक्टर और एक्ट्रेस हैं। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, चंद्रयान 2 में भी विक्रम लैंडर था। विक्रम लैंडर के अंदर ये 4 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट थी। एक चेस्ट नाम का डिवाइस, चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेस्मिक एक्टिविटी, लैंग्वेज प्रोब, और पैसिव लेजर रिफ्लेक्टर अरे फ्रॉम नासा। इसको याद रखना, ये जो है इंडिया का नहीं है। नासा ने चंद्रयान 3 के साथ, उनको हम पर बहुत भरोसा था कि हम चंद्रयान 3 पहुंचा देंगे, सॉफ्ट लैंड करवा देंगे, तो उनने हमारे साथ ये भेजा था पैसिव लेजर रेट्रोफ्लेक्टर, ताकि हम इस वो लोग भी जो है इसको एज रिसर्च के उसमें यूज कर सके। तो ये मान लो कि हम ग्लोबली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद में आता है प्रज्ञान रोवर, जिसमें एपीएक्सएस एक स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ था, एलआईबीएस एक और स्पेक्ट्रोस्कोप था, और कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज और है फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। उसके अलावा प्रोपल्शन मॉड्यूल विद स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। बहुत लंबा नाम है, मुझे पता है नहीं याद होगा, उसकी शॉर्ट फॉर्म याद रखना अगर कुछ याद ना हो तो। एक तो ये याद रखना कि स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री के लिए ये गया है और इसका नाम है शेप। शेप से याद रखोगे याद रहेगा। तो 3 की फीचर्स क्या है? विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर और शेप।
विक्रम लैंडर में किसके कौन सी कंट्री का लेके गए हैं हम, तो एक नासा का पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर लेकर गए हैं। ये याद रखना कि नासा का कुछ लेके गए हैं विक्रम लैंडर में। आगे बढ़ते हैं, इसकी टाइमलाइन देखते हैं एक बार, थोड़ा टाइमलाइन पे ध्यान देते हैं। तो 14 जुलाई को ये श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था। यूजुअली हम देखते हैं इंडिया के अभी जो मिशन है या जो भी सैटेलाइट्स जो भी जाते हैं वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होते हैं। उसके पहले होते थे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से, जो कि साउथ में ही है, केरला में। विक्रम साराभाई कौन थे, तो इसरो के फाउंडर थे। सतीश धवन कौन थे, तो ये भी इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। 5 अगस्त को हमने लूनार ऑर्बिट एंट्री करी थी। 17 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल सेपरेट हो गए थे एक दूसरे से। 18 और 20 अगस्त को रिस्पेक्टिवली पहली और दूसरी डीबूस्टिंग हुई थी। 23 अगस्त यानी कि हमारा नेशनल स्पेस डे, हमने सक्सेसफुली लैंड करा था मून पर। 24 अगस्त से जो है वो रोवर एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ और 30 अगस्त से एक्सपेरिमेंट्स पर काम करना शुरू हो गया और उनको इनफैक्ट पॉजिटिव फाइंडिंग्स भी मिलने लगी। हमारे लिए दो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो 14 जुलाई की डेट जब लॉन्च हुआ था, एक 23 अगस्त की डेट। ऑलमोस्ट एक महीना लग रहा है, 15 डेज कुछ के आसपास पड़ेगा ये, जैसे कि हमने डिसाइड किया कि 1 लूनर डे का वो है। तो ये दो डेट्स हमारे लिए इस टाइमलाइन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस दिन लॉन्च हुआ और जिस दिन लैंड हुआ। आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान 2 से हमने इम्प्रूव किया है और ये बहुत फैक्चुअल तो नहीं है, दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस टू गो थ्रू सो दैट यू कैन बिल्ड अप योर ओन स्टोरी। तो हमने चंद्रयान 2 से ये सारी चीजें जो है सीखी, जैसे हमने सोलर पैनल्स बढ़ा दिए, लैंडिंग रेंज बढ़ा दी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दी, मनूवरेबिलिटी बढ़ा दी, थोड़े फ्यूल रिजर्व्स इंक्रीज कर दिए, लैंडर्स लेग फॉर स्टेबिलिटी इंक्रीज कर दिए। जब वो लैंड किया तो हमें इम्पैक्ट से पता चला कि नहीं, थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है। सोलर पैनल्स इंक्रीज करे हैं, लैंडर की स्पीड के लिए लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर का यूज किया है। सो दीज आर वो चीजें जो हमने चंद्रयान 2 से सीखी और चंद्रयान 3 में इंप्रूव कर पाए। आगे बढ़ते हैं, भाई इतनी बात क्यों है, इससे पहले भी तो मून मिशन गए हैं, तो ये पहली बार था कि जब लूनर साउथ पोल पे लैंड किया। अब इंडिया में साउथ घूम के आओगे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, पर अगर तुम मून का साउथ घूम कर आ रहे हो तो लोग यार बहुत तारीफ करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर है ना बहुत सारे चैलेंजेस है। देयर इज लैक ऑफ सनलाइट। नॉर्थ पोल पे मून के सनलाइट आती है पर साउथ पोल पर सनलाइट नहीं आती है। फिर बहुत कोल्ड कंडीशंस है, दिल्ली की ठंड में लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर इसरो ने -230 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर मशीन्स के फ्रीज हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, फ्यूल फ्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्योंकि ग्रेविटी लेस एरिया है तो वहां पर और ज्यादा इस ठंड की वजह से साइंटिफिक इक्विपमेंट्स में दिक्कत आने लग जाती है। तो बहुत कोल्ड कंडीशंस हैं। बेनिफिट्स क्या है इसके, तो अब हम साउथ पोल पे वाटर सोर्सेज ढूंढ रहे हैं और फॉसिल रिकॉर्ड्स भी ढूंढ रहे हैं अर्ली प्लानिटरी सिस्टम डिस्कस करने के लिए। तो साउथ पोल पर एक्सपेक्टेड है कि वाटर सोर्सेज मिलेंगे और प्लानिटरी सिस्टम के लिए फॉसिल्स मिल सकते हैं हमें। चैलेंजेस क्या थे, लैक ऑफ सनलाइट और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस, ये दो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे, ये भी याद रखिएगा। कंक्लूड करते हैं, कैसे याद रखना है, चंद्रयान 3 इंडिया का सक्सेसफुल लूनर मिशन और इंडिया बन गया फर्स्ट कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन साउथ पोल ऑफ मून। ये याद रखना, साउथ पोल ऑफ मून। इट ओवरकेम चैलेंजेस ऑफ मून साउथ पोल, जो भी हमने पढ़ी कि लैक ऑफ सनलाइट है या फिर बहुत एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस है जैसे -230 डिग्री सेल्सियस की। और इससे फ्यूचर लूनर एक्सप्लोरेशन की जो और प्लान्स बन चुके हैं वो भी आ चुके हैं। अब जाते जाते मुझे कंक्लूड करते हैं हम, पर एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए, फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून हमें पता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इनके साथ ना दो लोग और गए थे, उनमें से एक ने मून पे लैंडिंग करी थी, दे आल्सो लैंडेड ऑन मून, मतलब दे आल्सो वॉकड ऑन मून। तीसरे इंसान कौन थे, उनका नाम लेके आना है। देयर वर 3 पीपल, उसमें से एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जिनको हम सब जानते हैं, फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून। सेकंड कौन थे और थर्ड कौन थे, ये आप लोगों को निकाल के लाना है, बिकॉज दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। That was all. This is our Chandrayaan 3. Thank you so much, guys. See you later.